ویلکم بیک. اب جن گیسٹ سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں ان کا تعارف تو میں آپ کے ساتھ کرواؤں گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے اسٹارٹ اپس ہوئے بھی ہیں جو کہ بہت سکسیزفلی رن ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سکسیزفلی رن ہونے کے بعد شٹ ڈاؤن بھی ہو گئے ہیں. سو آج کل کے جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، جو یونیورسٹی گوئنگ ہے، انکیوبیشن سینٹرز کے تھرو اسٹارٹ اپس شروع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بٹ ایونچولی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپ کھول لیا ہے تو بس 3 مہینے میں وہ اتنا پروگریس کر جائے کہ آپ ڈالرز بنانا شروع ہو جائیں اور پیسے کمانا شروع ہو جائیں. بٹ ایکچولی ایسا ہو نہیں پاتا. شاید ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ ریکوائرڈ سیٹ آف اسکلز ان کے پاس نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے. سو وہ کیا ہیں اور کس طرح آپ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے. میرے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے جناب غضنفر اقبال صاحب. انہوں نے آٹو سہولت ایک ایسا اسٹارٹ اپ ہے، یہ انہوں نے کو فاؤنڈ کیا، امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں. کریم کے ساتھ ایسوسیٹ رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ ایکیومن فیلو بھی ہیں، مینٹور ہیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد میں. پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں، اور انٹرپرینور پروگرام کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو غضنفر. سو جب ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی تو سب سے پہلا ذہن جاب مارکیٹ کا آتا ہے، جاب سیکرز کا آتا ہے، بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں لوگ جاب میکرز بننا تو چاہتے ہیں بٹ بن نہیں پاتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا وجہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ I think what is happening with the universities, with the institutions, تھیوری کے اوپر تو ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے آئی تھنک اب اسٹارٹ ہو گیا کافی زیادہ کہ یونیورسٹیز بھی پش کرتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ویسے ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ آپ انٹرنشپ کریں، بیکاز ونس یو انٹرن یو گیٹ دیٹ پروفیشنل فلیور کہ کس طرح سے کمپنیز کام کر رہی ہیں، کیا پروسیسز ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے فالو کرنا پڑتا ہے. اینڈ یو آلسو گیٹ دا کانفیڈینس ٹو کمیونیکیٹ ود دا کارپوریٹ سیکٹر ایز ویل. So in my experience, when I was working in Careem, a lot of people wanted to come on board as intern, and they were not asking for any money. They were just asking to get that exposure and experience. So universities can give you the skills theoretically, but to reach to the practical point where you can actually excel in your professional career, you have to attach yourself with any organization. جس طرح آپ نے چاہے پیسے ملے یا نہ ملیں، چاہے پیسے ملیں یا نہ ملیں، because obviously my personal experience is money is the byproduct of whatever you do. پیسہ جتنا آنا ہوتا ہے، جتنا ڈسٹری میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے. اس کو آپ کو فالو نہیں کرنا چاہیے بیکاز دیٹ از ناٹ دا رائٹ پاتھ. آپ کو اپنی پرسنل برانڈنگ، اپنی گرومنگ، اپنی ڈیولپمنٹ، اپنے کیریئر اور پروفیشنلزم، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تو پیسہ خود ہی اٹریکٹ کرتا ہے. بٹ بینگ دا ینگ کراؤڈ، اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، یہ سارے پیسے کو ہی چینج کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی. بالکل. اچھا غضنفر، کریم از رننگ سکسیزفلی، اوبر ہیز لمیٹائز یا پھر کئی آپریشنز انہوں نے بند کر دیے ہیں، ایئر لفٹ بند ہو گیا. یہ جو اسٹارٹ اپس شروع ہوتے ہیں سکسیزفلی رن کر رہے ہوتے ہیں، اوبویسلی انڈر لائنگ ریزنز اس کی ہوں گی، بٹ اسپیسیفکلی ناؤ یو ہیو ورک فار دا کریم، تو اوبر از دا تھنگ کیوں بند ہو رہا ہے؟ بیکاز بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیوں لمیٹائز کیے انہوں نے اپنے آپریشنز، کہاں پر ایشو ہو رہے ہیں. اب ایک اور میں ایڈ دیکھتی ہوں جہاں پر وہ کہتے ہیں جی اپنا کرایہ خود طے کریں ڈرائیور کے ساتھ، دو اٹس ناٹ پاسبل. سو کس طرح ہاؤ اٹ ورکس؟ So I think if I talk about Uber and Careem, so Uber نے Careem کو خریدا تھا. So Careem got purchased in $3.1 billion, which was a huge success for Careem as well. Careem's founder Mudassir is basically a Pakistani, belongs from Karachi, اور انہوں نے اور میگنس نے 2012 میں Careem اسٹارٹ کی. So it was a big success کہ Uber جیسی کمپنی نے Careem کو خریدا. But they gave Careem the opportunity to experiment and explore as a separate brand, which Careem did. So previously Uber and Careem separate brand کی طرح ہی ایکٹ کر رہے تھے، although parent company Careem کی ابھی بھی Uber ہے. Uber کو بند کرنے کی وجہ جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ دو برانڈس کے ساتھ اب کمپنی آگے نہیں چلنا چاہ رہی، بیکاز ایٹ دی اینڈ بیک اینڈ کے اوپر ایک ہی کمپنی ہے. اور جس طرح سے آپ نے کمپٹیشن کی بات کی، کمپٹیشن از آلویز گڈ ریگارڈلیس. دیر شوڈنٹ بی اے مونوپلی آف ون آرگنائزیشن اور ون کمپنی ان اینی انڈسٹری، بیکاز اس کی وجہ سے پھر کنٹرول سارا کا سارا کمپنی کے پاس آ جاتا ہے. آئی تھنک یوزر اینڈ کسٹمرس شوڈ بی مور امپاورڈ، اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے ایک کمرشل اور پرائسنگ کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کافی زیادہ بہتری آئی ہے. اور اب ایز اے کسٹمر آپ کے پاس زیادہ آپشنز بھی ہیں اور آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کمپٹیشن کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کریم کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں. اوبر گلوبلی ایک بہت بڑا نام ہے، بٹ کریم کا فوکس ہے میناپ ریجن کے اندر، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اینڈ پاکستان.
So I think over here in 10 countries and 100 cities, it is more focused, more localized, and the people that are working in Careem are from this particular region. So Uber ने सोचा ये कि हम यहाँ से एग्जिट लेके करीम को फुल यहाँ के अंदर ऑटोनॉमी देते हैं कि वो यहाँ पे एक्सप्लोर करें. In regards to Airlift and other startups getting failed, so it always happens. Product market fit एक ज़माने में चल रहा होता है और फिर आगे उस अगले ज़माने में मे बी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती. आई कैन एक्चुअली गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बिग टेक राइट नाउ, राइट? आई मीन मेटा को देखें, अमेजोन को देखें, गूगल को देखें. So a lot of these companies are laying off thousands and thousands of employees. Does that mean कि they are failed? Absolutely not. So COVID के अंदर उन लोगों को ज़्यादा requirement थी लोगों की, तो उन्होंने हायरिंग कर ली. बिकॉज हम लोग एक वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में चले गए, हम घरों में चले गए, बट हमारी ज़रूरियात तो उसी तरह से रहीं. तो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी उसी तरह से एग्रेसिवली यूज़ करना शुरू किया. बट व्हाट हैपेंड वाज कि अब हम नॉर्मलाइज हो गए तो हम बाहर जाना शुरू हो गए. हम अब फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी नहीं यूज़ कर रहे, हम रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, हम दोबारा से ऑफिसेज भी जा रहे हैं. हम पहले डिलीवरी करवा रहे थे, अब हम खुद जाके ले रहे हैं. तो जो पहले इतना ज़्यादा एकदम से जो है इंक्रीमेंट आया था इस यूसेज के अंदर, वो एकदम से नॉर्मलाइज हुआ है. सो उस हिसाब से देखें तो फिर आपको एज अ कंपनी भी इवॉल्व होना पड़ता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. पहले इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं थे, अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, दो छोड़ के तीसरी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर कायम है. बट मुझे लगता है रिक्वायर्ड आउटपुट दे नहीं पा रहे वो. इसकी वजह आप क्या समझते हैं? बिकॉज आप खुद भी जुड़े हुए हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से. जी जी बिल्कुल. सो इंक्यूबेशन सेंटर्स आई थिंक they are important because they give you free office space, they connect you with the mentors and professionals and people from the startup ecosystems. But I still feel कि we are in the nascent stage of the startup ecosystem. हम लोग start हो रहे हैं. जी. आप अगर हमें ग्लोबल किसी और इकोनॉमी से कंपेयर करें, और मैं कहता हूँ कि इंडोनेशिया को अगर आप स्टडी करें 2015 एंड 2016 में जहाँ पे इंडोनेशिया खड़ा हुआ था, पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त वहाँ पे है. So we are still learning, still improving. These incubation centers are important, but आपका कहना भी ठीक है कि ये उस तरह से value addition नहीं करे. But I think the culture they are creating of innovating and creation, that is super important. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ से क्या innovation हो रही है, क्या चीज़ हम create कर रहे हैं जो बाकी दुनिया को फ़ायदा दे रही है. More or less हमारी economy को भी देखें तो हम सारी चीज़ें import कर रहे होते हैं. So I think creation is very very critical. और हमारी young generation 60 to 70% of people are young. So these incubation centers are creating that base. But आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से और लोग इस कम्युनिटी के अंदर आना शुरू होंगे और वो इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ काम करना शुरू करेंगे, तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट आएगी. इनको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन स्किलफुल लोगों को आगे लाना चाहिए. आई फील लाइक रेगुलेशंस एंड प्रॉब्ली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इट इज़ सुपर क्रिटिकल कि टॉप डाउन एक स्ट्रेटजी बनाई जाए और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोग जिन्होंने स्टार्टअप्स चलाए हैं या चला रहे हैं, इवन इफ दे हैव फेल्ड, दे हैव दैट एक्सपीरियंस हाउ नॉट टू फेल. उन लोगों को रेगुलेशंस के अंदर आना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और वो आके पॉलिसीज़ डिवाइस करें और वो फिर थ्रू एंड थ्रू सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर चलें. तो आई थिंक दैट विल बी अ मच मच बेटर अप्रोच. सो आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए एंटरप्रेन्योर स्किल्स के ऊपर भी जोर देते हैं. सो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करें, एक्चुअली सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर करने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा फोकस मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत है तीन चीज़ों के ऊपर. सबसे पहले कंसिस्टेंसी एंड ग्रिट. कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो इट इज़ फाइन टू फेल. हमारे कल्चर के अंदर फेलियर को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है, जो कि नहीं लेना चाहिए. आई थिंक जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप फेल ही नहीं होंगे, और जब आप फेल होंगे तो आप लर्न करेंगे. सो आई मीन गिविंग फेलियर अ नेगेटिव फीलिंग इज़ टोटली रॉन्ग. सो यू हैव टू हैव द कंसिस्टेंसी एंड ग्रिट टू कंटिन्यू. अगर आप गिर रहे हैं फिर चलें, क्योंकि हरकत में बरकत है. एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग यू कैन कंटिन्यू मूविंग ऑन. देन इट कम्स टू गेटिंग दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि जी आप आईवी लीग लेवल की या टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ देखें, वहाँ से स्टूडेंट्स निकल के कहते हैं कि हमने एक सर्टेन ब्रांड के अंदर जाना है. सो दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन ट्रेंड. सो ट्रेंड तो आप फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो आपको उस तरह का ग्रोथ कैरियर नहीं दे पाएगा. टेक मोर रिस्क. When you are young, you can take risk. At my age, I'm 41 right now, married, so मैं इतने risk नहीं ले सकता. But if you are in your 20s, you are single, you can experiment and explore a lot as well. वहाँ पे आपके पास learning के लिए बहुत बड़ी playing field है. So I mean, use that time. And जब time की बात करें, I think most critical is time. हम लोग YouTube के ऊपर Netflix पे बैठ के मूवीज़ देख लेते हैं 3-3, 4-4 घंटे की. अब मैं नहीं देखता. मैं कहता हूँ कि मैंने ये टाइम वेस्ट किया है. रादर देन दैट आई शुड वॉच समथिंग एजुकेशनल, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लूँ या कोई बुक पढ़ लूँ.
So as a student, as a young person, I would suggest that time is important. It is not going to be replaced by anything. So utilize that perfectly. जितना जल्दी आप time को रियलाइज करेंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना जल्दी आप ब्लॉसम और ग्रूम करेंगे. बिल्कुल सही. अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं जिस पे आपको लगता है कि स्टार्टअप्स हो सकते हैं और हम शायद फोकस नहीं कर पा रहे? आई थिंक राइट नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो व्हाट इज़ जनरेटिव एआई? इट इज़ जहाँ पे आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं. राइट नाउ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, चैट जीपीटी, और उसके अंदर 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूज़र्स आ गए हैं. अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक को आई थिंक 20 मंथ्स लगे थे 1 मिलियन यूज़र बेस बनाने में. नेटफ्लिक्स को आई थिंक 40 मंथ्स लगे थे. 5 दिन के अंदर दिस प्लेटफॉर्म हैज़ रीच 1 मिलियन यूज़र बेस. व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड टूल जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन लिखें तो आपको उसका आंसर दे देता है. यू कैन राइट अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, आई नीड अ मार्केटिंग रिसर्च विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपको पूरी मार्केटिंग रिसर्च बना देगा. यू आर फ्रॉम मीडिया, अगर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहें किसी चीज़ के ऊपर, वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आपको बना देगा, वैल्यूज़ बना देगा, आपको ईमेल ड्राफ्ट कर देगा, पॉइंट्स लिख देगा. इसी तरह से जनरेटिव एआई के अंदर अब टूल्स आ गए हैं जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन लिखें तो आपको उसका आर्ट फॉर्म में दे देगा. DALL-E एक इस तरह से टूल है जहाँ पे आप आर्ट बना सकते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड प्रॉबेबली आर्टिस्ट, प्रॉबली राइटर्स, कंटेंट राइटर्स, इन लोगों की इस तरह से ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू डू इट एंड इट इज़ गोइंग टू डू इट वेरी वेरी वेल, बिकॉज एज ह्यूमन्स कंटिन्यूसली वी आर इनपुटिंग, हम इनपुट्स कर रहे हैं इसके अंदर और वो उससे इम्प्रूव भी हो रहा है. राइट. सो आई थिंक इसके अंदर फोकस अभी जो करना आप चाहिए. मुझे बता रहे थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यूजर्स उन्होंने बना लिए, ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी स्किल्स को कहते हैं ना, आप अपनी दिमागी सलाहियतें तभी यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट. सो जब आपको सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी एक बटन के ऊपर, तो आप अपना दिमाग तो नहीं इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट. तो ये थोड़ा सा इसलिए नहीं होगा कि स्टूडेंट्स का जो दिमाग है वो इस्तेमाल करना कम कर देंगे और इसी पे लग जाएंगे? नहीं, अगर आप पास्ट के अंदर देखें तो पास्ट के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी. ठीक है, हम लोग गधा गाड़ी से भी स्टार्ट हुए थे, हम लोग गाड़ियों के ऊपर भी आए, हम लोग जहाज़ के ऊपर भी आए. अगर आप देखें कि वहाँ का जो स्ट्रगल था और आज का कंफर्ट है ये, ठीक है, तो हम लोग उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे उस माइंडसेट के हिसाब से अगर आप देखें. बट वहाँ पे अब जो स्किल सेट है, स्किल सेट आपका चेंज हो जाएगा. what input you are going to give that is going to get you the very good result. So वो prompt skill set, एक नई skill जो है वो आपको develop करनी पड़ेगी, and then you will have time to do more things. You will have time to think, self-develop yourself further and enhance yourself with numerous other things that are coming into the play. अच्छा, और इसके लिए फिर you need to enroll yourself in different courses because अब तो engineering तो आ गई है, but those who are done with the graduation and all, so what they have to do? Courses में fresh up हो या फिर खुद से सेल्फ लर्निंग भी हो सकती है? नहीं, सेल्फ लर्निंग तो मेरा ख्याल है साइड लाइन पे वैसे ही करनी चाहिए. आई नो अ किड, उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खुद लर्न की एंड ही इज़ रिमोटली वर्किंग फॉर अ कैनेडियन फर्म राइट नाउ, अर्निंग इन मिलियंस, राइट. सो रिमोट वर्क तो अब ऑन हो गया कोविड के बाद से. आप यहाँ से बैठ के यूएस और कनाडा की कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं. इट डजंट हैव टू बी कि यू आर अ फाइनेंस एक्सपर्ट या आपने फाइनेंस में डिग्री की है तो अब आप जो है फाइनेंस की ही जो है लेग को पकड़ लें. यू कैन create yourself in a technology, software engineering term as well through Coursera, through Udemy, through different platforms. दुनिया भरी हुई है. हार्वर्ड का कंप्यूटर साइंस का पूरा CS 101 का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड इट इज़ फ्री. आप पूरी की पूरी कोडिंग पाइथन लेवल की लर्न कर सकते हैं अगर आप लर्न करना चाहें. अगेन इट इज़ अबाउट यू योर सेल्फ एक्सप्लोरिंग, बिकॉज शुरू में आपको आइडिया नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हैं. you know enroll yourself in a degree with different subjects, फिर आप realize करते हैं शायद this is not for me, तो you can experiment and explore as well. and startups के अंदर तो ये बहुत openly है कि आप एक डिपार्टमेंट में आए हैं तो doesn't mean कि आप इसी डिपार्टमेंट के अंदर सारी ज़िंदगी रहेंगे. If you feel like you can actually add value in some other function or department, you can move there, you can move around and you can get yourself that diverse experience that is so much required in these times. Because at the end it all depends upon your passion and interest. बहुत शुक्रिया गज़नफ़र, बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर हमें नहीं पता होती. जिस तरह अभी मुझे इनसे बात करके पता चला कि एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे आप लिखेंगे और सब कुछ रेडीमेड आपको मिल जाएगा. सो अक्सर मुझे भी कई दफ़ा रिसर्च हम सबको ही होती है, टाइम नहीं होता, बट बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा सॉफ्टवेयर है. प्रोडक्टिव चीज़ों में जाना चाहिए और हम अक्सर डिस्कवर पाकिस्तान पे कहते भी हैं कि पॉजिटिव यूज़ करें, पॉजिटिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तान एज वेल. सो गज़नफ़र का हम शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे हम ब्रेक के बाद मिलेंगे.